کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان ہوں مگر دل خالی ہو، اور کبھی ایسا لمحہ آیا کہ آپ اکیلے ہوں مگر ایسا لگے جیسے کوئی آپ کے بہت قریب ہے۔ یہ فرق جگہ کا نہیں ہوتا، یہ فرق تعلق کا ہوتا ہے۔ تنہائی کچھ لوگوں کے لیے سزا ہے اور کچھ کے لیے وہی تنہائی اللہ سے ملاقات کا دروازہ بن جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر وہ کون سا راز ہے جو ایک عام تنہائی کو اللہ کے قرب میں بدل دیتا ہے؟ کیوں کچھ لوگ اکیلے ہو کر ٹوٹ جاتے ہیں اور کچھ اسی تنہائی میں اللہ سے جڑ جاتے ہیں؟ آج ہم اس پردے کو اٹھائیں گے اور جانیں گے کہ تنہائی میں اللہ سے تعلق کیسے مضبوط ہوتا ہے اور کیوں یہی لمحے سب سے قیمتی ہوتے ہیں۔ ہم اکثر تنہائی سے بھاگتے ہیں، ہمیں شور چاہیے، لوگ چاہیے، مصروفیات چاہیے، کیونکہ جیسے ہی ہم اکیلے ہوتے ہیں ہم اپنے آپ سے ملنے لگتے ہیں۔ اور سچ یہ ہے، انسان اپنے آپ سے ملنے سے ڈرتا ہے، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات میں تنہائی کو خوف نہیں بلکہ دعوت کہا گیا ہے۔ دعوت اس طرف جہاں بندہ اپنے رب سے بغیر کسی پردے کے بات کر سکتا ہے۔ تنہائی میں نہ کوئی دکھاوا ہوتا ہے، نہ کوئی تعریف کرنے والا، نہ کوئی سننے والا۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان جیسا ہے ویسا ہی ہوتا ہے، اور یہی اصل مقام ہے جہاں سے اللہ سے سچا تعلق شروع ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سے وہی جڑتا ہے جو تنہائی میں بھی سچا ہو۔ اگر انسان کی عبادت صرف لوگوں کے سامنے ہو تو وہ ایک عادت بن جاتی ہے، لیکن جب وہی عبادت تنہائی میں ہو تو وہ تعلق بن جاتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات ہمیں یہ سمجھاتی ہیں کہ تنہائی میں کیا جانے والا عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ خالص ہوتا ہے، کیونکہ وہاں نہ ریا ہوتی ہے نہ دنیا، صرف بندہ اور اس کا رب ہوتا ہے۔ ایک لمحہ رک کر سوچیں، جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو آپ کا دل کہاں جاتا ہے؟ اللہ کی طرف یا دنیا کی طرف؟ کیونکہ تنہائی اصل میں ایک آئینہ ہے جو دکھاتا ہے کہ ہمارا تعلق حقیقت میں کس سے ہے۔ تنہائی کا اصل امتحان یہ نہیں کہ آپ اکیلے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اپنے دل کے ساتھ کتنے سچے ہیں۔ ہم دن بھر لوگوں کے سامنے ایک چہرہ لے کر چلتے ہیں، مضبوطی کا، نیکی کا، ٹھیک ہونے کا، لیکن جب تنہائی آتی ہے تو وہ تمام پردے گر جاتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات میں ایک گہری بات ملتی ہے، جو بندہ اپنے نفس کی حقیقت کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ پا لیتا ہے۔ یعنی جب تک انسان خود سے سچ نہیں بولتا وہ اللہ سے بھی سچی بات نہیں کر سکتا۔ تنہائی میں سب سے پہلا قدم یہ نہیں کہ آپ لمبی عبادت شروع کریں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو بولنے دیں۔ اپنے آپ سے پوچھیں، میں اندر سے کیسا ہوں؟ مجھے کس چیز نے تھکا دیا ہے؟ میں کہاں کھو گیا ہوں؟ یہ سوال آسان نہیں ہوتے، کیونکہ یہ انسان کو اس کے اصل چہرے کے سامنے لا کھڑا کرتے ہیں، لیکن یہی سچائی اللہ کے ساتھ تعلق کی بنیاد بنتی ہے، کیونکہ اللہ کو وہ زبان نہیں چاہیے جو خوبصورت الفاظ بولے، بلکہ وہ دل چاہیے جو سچا ہو، چاہے ٹوٹا ہوا ہی کیوں نہ ہو۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو پہچاننا اور انہیں مان لینا یہی وہ دروازہ ہے جہاں سے اللہ کی رحمت داخل ہوتی ہے۔ یہاں ایک بہت اہم حقیقت ہے، جو انسان اپنے آپ سے بھاگتا ہے وہ کبھی اللہ کے قریب نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ انسان کے اپنے دل کے اندر سے گزرتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے رکیں، کیا ہم واقعی تنہائی میں اپنے آپ کا سامنا کرتے ہیں یا فوراً کسی مصروفیت میں خود کو چھپا لیتے ہیں؟ یہی وہ پہلا قدم ہے جو ایک عام تنہائی کو
अल्लाह से ताल्लुक की इब्तदा बना देता है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि जिक्र सिर्फ जबान से अदा किए जाने वाले अल्फाज का नाम है, लेकिन तन्हाई में जिक्र एक बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत इख्तियार कर लेता है। यहां न आवाज की जरूरत होती है, न अल्फाज की खूबसूरती की। यहां तो सिर्फ एक चीज काम आती है, दिल की हाजिरी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तालीमात में जिक्र को महज तकरार नहीं, बल्कि दिल के जागने का अमल करार दिया गया है। वो इस तरफ रहनुमाई करते हैं कि जब दिल गाफिल हो तो जबान का जिक्र भी एक आदत बन जाता है, लेकिन जब दिल बेदार हो जाए तो खामोशी भी जिक्र बन जाती है। तन्हाई में यही राज खुलता है। इंसान बैठा होता है, लब बंद होते हैं, लेकिन दिल के अंदर एक सदा चल रही होती है जो किसी को सुनाई नहीं देती सिवाय अल्लाह के। ये वो मकाम है जहां बंदा अल्फाज से आगे निकल जाता है और एक ताल्लुक महसूस करने लगता है। ऐसा ताल्लुक जिसमें कोई रस्मीपन नहीं होता, न कोई तरतीब, न कोई दिखावा, सिर्फ एक सादा सी कैफियत, या अल्लाह मैं तेरे सामने हूं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तालीमात हमें ये समझाती हैं कि तन्हाई में क्या जाने वाला जिक्र दिल पर नक्श छोड़ता है, और यही नक्श आहिस्ता आहिस्ता ताल्लुक को मजबूत बनाता है। यहां एक गहरी बात है, जिक्र वो नहीं जो हम करते हैं, जिक्र वो है जो हमें बदल दे। अगर जिक्र के बाद भी दिल वैसा ही रहे तो समझ लें कि हमने सिर्फ अल्फाज दोहराए हैं। लेकिन अगर दिल नर्म होने लगे, आंख नम होने लगे, तो यह इस बात की निशानी है कि जिक्र दिल तक पहुंच रहा है। एक लम्हा रुककर खुद से पूछें, जब आप तन्हाई में अल्लाह को याद करते हैं तो क्या सिर्फ जबान चलती है या दिल भी उसमें शामिल होता है? क्योंकि तन्हाई का जिक्र ही वो चिराग है जो दिल के अंधेरों को आहिस्ता आहिस्ता रोशन करता है। इंसान अक्सर ये समझता है कि जैसे ही वो अकेला होगा वो फौरन अल्लाह के करीब हो जाएगा, लेकिन हकीकत इसके बरक्स भी हो सकती है। कभी ऐसा होता है कि इंसान तन्हाई में होता है मगर उसका दिल फिर भी मुंतशिर रहता है, ख्यालात बिखरे हुए, दिल बेचैन, और अंदर एक अजीब सी दूरी महसूस होती है। सवाल यह है, आखिर वो क्या चीजें हैं जो तन्हाई में भी हमें अल्लाह से दूर रखती हैं? शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तालीमात हमें इस तरफ मुतवज्जे करती हैं कि दिल की रुकावटें बाहर नहीं, अंदर होती हैं। सबसे पहली रुकावट, गफलत। दुनिया की मसरूफियात में इंसान इतना खो जाता है कि जब वो अकेला भी होता है तो उसका दिल वैसा ही भटकता रहता है। तन्हाई जिस्म की होती है, लेकिन दिल फिर भी हुजूम में रहता है। दूसरी रुकावट, गुनाहों का बोझ। हर वो अमल जो दिल पर बोझ बन जाए वो इंसान को अल्लाह के करीब आने से रोकता है, क्योंकि गुनाह दिल को भारी कर देते हैं और भारी दिल ऊपर नहीं उठता। तीसरी रुकावट, दिल की सख्ती। जब इंसान बार बार सच को नजरअंदाज करता है तो दिल आहिस्ता आहिस्ता सख्त हो जाता है। फिर न नसीहत असर करती है, न जिक्र में लुत्फ आता है, और तन्हाई भी बेमानी लगने लगती है। चौथी रुकावट, जल्दी नतीजा चाहना। बहुत से लोग चाहते हैं कि वो चंद लम्हों में अल्लाह से गहरा ताल्लुक महसूस करने लगें, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वो मायूस हो जाते हैं। हालांकि ये एक सफर है जो वक्त, सब्र और तसलसल मानता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तालीमात हमें यह समझाती हैं कि दिल की इस्लाह एक तदरीजी अमल है, और जो सब्र करता है वही मंजिल तक पहुंचता है। यहां एक बहुत अहम हकीकत है, तन्हाई खुद ब खुद इंसान को अल्लाह के करीब नहीं करती, बल्कि दिल की कैफियत उसे करीब या दूर करती है। एक लम्हा रुककर खुद से पूछें, क्या मेरी तन्हाई वाकई अल्लाह के लिए होती है या सिर्फ एक वक्ती खामोशी होती है?
क्योंकि जब तक दिल की रुकावटें दूर नहीं होंगी, तन्हाई भी सिर्फ एक खाली लम्हा बनकर रह जाएगी। तन्हाई तब तक तन्हाई ही रहती है जब तक इसमें कोई सिमत ना हो। अकेला बैठना, खामोश रहना, यह सब काफी नहीं होता। असल तब्दीली उस वक्त आती है जब तन्हाई में एक खास अमल शामिल हो जाए, दिल का झुक जाना। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तालीमात में एक निहायत बारीक नुक्ता मिलता है। जब बंदा अपने दिल को अल्लाह के सामने झुका देता है तो अल्फाज के बगैर भी उसकी फरियाद सुनी जाती है। यह झुकना सिर्फ जिस्म का नहीं होता, यह दिल का होता है। तन्हाई में वो लम्हा जब इंसान अपने सारे सहारे छोड़ देता है, न किसी इंसान से उम्मीद, न किसी वसीले पर भरोसा, बस एक एहसास बाकी रहता है, या अल्लाह, मेरे पास तेरे सिवा कुछ नहीं। यही वो कैफियत है जो तन्हाई को बदल देती है। यहां से बंदा मांगना सीखता है, लेकिन दुनिया नहीं, अपने रब को। यहां से वो समझता है कि असल ताकत किसके पास है और असल सुकून कहां है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तालीमात हमें यह सिखाती हैं कि तन्हाई में किया गया सच्चा रुजू इंसान के अंदर एक नया दरवाजा खोल देता है। ऐसा दरवाजा जहां से दिल हल्का होने लगता है और आंखें खुद ब खुद भीगने लगती हैं। यह कोई ड्रामा नहीं होता, यह दिल की सच्चाई होती है। यहां एक बहुत गहरी बात है। अल्लाह से ताल्लुक अल्फाज से नहीं, बल्कि टूट कर उसकी तरफ आने से बनता है। एक लम्हे के लिए रुकें। क्या हमने कभी तन्हाई में सच में अल्लाह के सामने खुद को छोड़ा है, या सिर्फ रस्मी दुआ करके उठ गए? क्योंकि जो दिल तन्हाई में झुकना सीख जाए, वही दिल अल्लाह के करीब होना शुरू हो जाता है। तन्हाई में अल्लाह से ताल्लुक बन जाए तो सबसे पहली तब्दीली बाहर नहीं, अंदर आती है। जिंदगी वही रहती है, लोग वही रहते हैं, हालात भी ज्यादा नहीं बदलते, लेकिन इंसान वैसा नहीं रहता। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तालीमात में इस कैफियत को दिल की बेदारी कहा गया है। ऐसी बेदारी जिसके बाद इंसान दुनिया को पहले जैसा नहीं देखता। सबसे पहली तब्दीली, सुकून का पैदा होना। पहले दिल छोटी छोटी बातों से हिल जाता था, अब वही दिल मुश्किल में भी संभला रहता है। यह सुकून किसी वजह से नहीं होता, यह ताल्लुक की वजह से होता है। दूसरी तब्दीली, फैसलों में सफाई। पहले इंसान उलझन में रहता था, सही और गलत के दरमियान फंस जाता था, लेकिन जब दिल अल्लाह से जुड़ता है तो एक अंदरूनी रोशनी पैदा होती है जो रास्ता दिखाने लगती है। तीसरी तब्दीली, गुनाह से फासला। जो चीजें पहले आसान लगती थीं, अब दिल उनसे घबराने लगता है। यह जबरदस्ती नहीं होती, यह दिल की तब्दीली होती है। चौथी तब्दीली, लोगों के लिए नरमी। दिल सख्ती छोड़ देता है, गुस्सा कम होने लगता है और इंसान दूसरों को समझने लगता है, उन पर फैसला करने के बजाय। पांचवी तब्दीली, अल्लाह पर भरोसा। पहले इंसान हर चीज को खुद संभालना चाहता था, अब वो अल्लाह पर छोड़ना सीख जाता है। ये कमजोरी नहीं, ये सबसे बड़ी ताकत होती है। यहां एक हकीकत बहुत अहम है। जब दिल अल्लाह से जुड़ जाए तो जिंदगी की मुश्किलें खत्म नहीं होती, लेकिन उन्हें बर्दाश्त करने की ताकत आ जाती है। एक लम्हा रुक कर सोचें, क्या हमारे अंदर कोई ऐसी तब्दीली आई है, या हम अभी भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे? क्योंकि असल निशानी यही है कि ताल्लुक सिर्फ महसूस ना हो, बल्कि जिंदगी में नजर भी आए। अल्लाह से ताल्लुक बन जाना एक नेमत है, लेकिन उसे कायम रखना एक जिम्मेदारी है। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान कुछ वक्त के लिए अल्लाह के करीब हो जाता है, दिल नरम हो जाता है, इबादत में लुत्फ आने लगता है,
लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वही दिल दोबारा दुनिया में उलझ जाता है और वो कैफियत खत्म होने लगती है। सवाल यह है, ऐसा क्यों होता है और इससे बचा कैसे जाए? शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तालीमात हमें एक बुनियादी उसूल देती हैं। दिल को जिंदा रखने के लिए उसे मुसलसल अल्लाह की तरफ मोड़ते रहो, वरना वो दोबारा गफलत में चला जाता है। यानी ये ताल्लुक एक बार बनाकर छोड़ देने का नाम नहीं, बल्कि उसे रोजाना संभालना पड़ता है। सबसे पहला तरीका, इस्तिकामत। चाहे दिल लगे या ना लगे, इबादत को जारी रखना, क्योंकि असल मोहब्बत वही है जो हालात के बदलने से ना बदले। दूसरा तरीका, दिल की निगरानी। दिन में कई बार खुद को चेक करना कि दिल कहां जा रहा है। क्या वो अल्लाह की तरफ है या दुनिया में खो रहा है? ये छोटी सी आदत बड़ी तब्दीली ले आती है। तीसरा तरीका, तन्हाई को छोड़ना नहीं। जब दिल बेहतर होने लगे तो इंसान मसरूफ होकर तन्हाई छोड़ देता है, और यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि वही तन्हाई जिसने ताल्लुक बनाया था वही उसे मजबूत भी रखती है। चौथा तरीका, नफ्स को काबू में रखना। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, उसके अंदर होता है। जब नफ्स को खुली छूट दी जाए तो वो दिल को दोबारा दुनिया की तरफ खींच लेता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तालीमात हमें यह समझाती हैं कि जो अपने नफ्स को काबू में रखता है वही अपने दिल को अल्लाह के करीब रख सकता है। यहां एक निहायत अहम हकीकत है, दिल हमेशा एक जैसा नहीं रहता, उसे संभालना पड़ता है, वरना वो फिसल जाता है। एक लम्हा रुककर खुद से पूछें, क्या हम अपने ताल्लुक को बरकरार रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं या सिर्फ एक वक्ती कैफियत पर खुश होकर बैठ गए हैं? क्योंकि जो ताल्लुक को संभालता है अल्लाह उसे और मजबूत कर देता है। जिंदगी में बहुत सी महफिलें मिलती हैं, लोग मिलते हैं, आवाजें मिलती हैं, लेकिन एक हकीकत कभी नहीं बदलती। इंसान के अंदर एक जगह हमेशा खाली रहती है जब तक वो अल्लाह से ना भर जाए। हम सारी जिंदगी बाहर तलाश करते रहते हैं, सुकून, मोहब्बत, समझने वाला कोई, लेकिन जो चीज बाहर नहीं मिलती वो तन्हाई में मिल जाती है। वो तन्हाई जहां ना कोई इंसान होता है, ना कोई दिखावा, सिर्फ एक बंदा और उसका रब। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तालीमात का निचोड़ यही है, अल्लाह से वही जुड़ता है जो उसके सामने सच्चाई के साथ अकेला खड़ा हो जाता है। तो आज फैसला आपके हाथ में है, क्या आप वो तन्हाई चुनेंगे जो आपको अल्लाह के करीब ले जाए, या वो मसरूफियात जो आपको खुद से भी दूर कर दें? याद रखें, हर वो लम्हा जो अल्लाह के बगैर गुजरता है वो दिल को खाली करता है, और हर वो लम्हा जो अल्लाह के साथ गुजरता है वही दिल को जिंदा करता है। या अल्लाह, हमें ऐसी तन्हाई अता फरमा जहां हम तुझसे जुड़ सकें। या रब, हमारे दिलों को सच्चाई दे और हमें अपने सामने झुकने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमारी तन्हाई को अपनी कुर्बत से भर दे और हमें ऐसा बना दे कि हम हर हाल में तुझे याद रख सकें। या रब, हमारे दिलों को दुनिया की बेसुकूनी से निकालकर अपनी मोहब्बत के सुकून में दाखिल फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये पैगाम आपके दिल में उतर गया है और आप चाहते हैं कि ऐसी बातें जो रूह को जगा दें आप तक पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल रूह सब्सक्राइब करें, इस पैगाम को लाइक करें और उसे शेयर करें, ताकि कोई और भी अपनी तन्हाई को अल्लाह से मुलाकात में बदल सके। और कमेंट में जरूर लिखें, आप अपनी तन्हाई को अल्लाह के करीब होने के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे। शायद आपका एक लफ्ज किसी और के दिल में रोशनी जला दे।